हमने कल जहाँ पे बात ख़त्म की थी, वहीं से शुरू करते हैं कि द मीनिंग और आइडियाज़ ऑफ लाइफ आर पॉजिटेड बाय अ फ्री डिसीजन ऑफ मैन। जो उनके सामने डेटा होता है, जो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस होता है उनके सामने, अ, उसका उस पे एक डिसीजन होता है वो फिलोसोफर का। एंड आई विल फिनिश इट एंड उसके बाद वी विल डू एन इनफॉर्मल डिस्कशन बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू एंड जल्दी। इट्स हार्डली अ पेज एंड अ हाफ का तो रह गया था। हमने कल बात की थी कि फिलोसोफर सिर्फ एक वो डिटैच्ड व्यू नहीं रखता फ़लसफ़े का। जो फैक्ट्स उसके सामने वो उसका डिटैच्ड व्यू नहीं रखता है। He is not driven by the truth of facts only. He is also driven by conviction. He is driven more by conviction than the truth of facts. The subjective certainty born of certain joy is the mastering key for the evaluation of any philosophy. Philosophical explanation को कैसे समझना है? As an illumination. Illumination of what? Of the sum total of all experience of man. There might be an explanation जो सिर्फ आपके अक्ल को सेटिस्फाई करे, आपकी अक्ल को सेटिस्फाई करती है लेकिन आपके इमोशन को सेटिस्फाई नहीं करती। नाउ इज दैट एक्सप्लेनेशन राइट? द मॉडर्न माइंड इज बाइस्ड टुवर्ड्स लॉजिक, while there is no absolute measurement जो इन दोनों में से हमको चूज करने में मदद करे। नहीं है कोई एक प्योर बायस है, फैसला है, फेथ पे लिया गया है कि व्हाट शुड आई से। योर हार्ट टेल्स यू दैट शी वुड से यस, योर माइंड टेल्स यू शी वुड से नो, so should you go ahead and tell her that you love her? Some would say yes, you should. Others would be like, no, you would get hurt. Now, this decision has to be taken based on what? This decision has to be taken. I do not know कैसे ये फैसला हम ले पाते हैं, पर हम ले लेते हैं. Modern civilization tends to look at things rationally, but then you can see now that ये rationality से आपको आंसर मिला कि no. दिल ने कहा yes. दो में से एक जो फैसला लेंगे, whatever you take, अगर दिल से लेंगे या दिमाग से लेंगे, ये फाइनली एक फेथ बेस्ड फैसला है। यू ट्रस्ट वन, यू डो नॉट ट्रस्ट अदर। द पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर एंड सक्सेस देयर आल्सो सेम इन बोथ। आपने बहुत बारी कहा होगा ये अपने लाइफ में कि अरे मैंने अपने दिल की सुनी होती है, आई हैड दीज वाइब्स, तो उस टाइम दिमाग ने आपके धोखा दिया होता है। तो जो हमारी प्रीसाइज एक छोटी छोटी इवेंट होती है उसमें अक्ल काम करती है बहुत अच्छा, मोर सो विच आर मटीरियलिस्टिक एंडेवर्स, इकोनॉमिक फैसला। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव ह्यूमन रियलिटीज़ है, गिफ्ट तोहफा, इसमें अक्ल ज़्यादा मदद नहीं कर पाती है। तो हमको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है इंसान को जो सेटिस्फाई करे नॉट जस्ट हमारा अक्ली इंसान, not just our scientific man. It has to satisfy our moral man also, our social, our logical, and so on. There is great logic in leaving your parents. They are a liability after some age. The economics of it would say that it is a consumption expenditure. You're not going to get anything out of it in return. But this explanation does not solve the moral person inside you. Now, many of you would be living this life of a conflict where things are not like going together. बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट एबल टू स्लीप एंड ऑल दीज थिंग्स, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ आइदर। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपका कोई एस्पेक्ट होता है जो रह गया होता है, योर सोशल एस्पेक्ट, योर मॉरल एस्पेक्ट, और समथिंग एल्स। सो द explanation has to satisfy all of these parts inside us, but modern civilization ko it has been made to think that no, you only have a scientific man inside you, and that which appeals to whole man, the social, the moral, the ethical, the logical, how can that be called an irrational explanation? How can it be called a non-rational explanation? How can it be anti-rational? It is not. The entirely rational फैसला is irrational, क्योंकि इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं है. So
Such an explanation, it is a rational reconstruction of experience. So that makes a philosophical explanation like what? A poetry, a religion. The difference between religion and philosophy then would be that the illumination is brought by logical skill here, by a masterful marshalling of facts in favor of a certain point of view. यहाँ पे लॉजिकल फैक्ट्स की ज़्यादा बात होगी, बाकी जगह रिलीजन में एथिकल साइड लिया जाएगा, मॉरल साइड लिया जाएगा, and the basic fundamentals of your religion. For example, our religion is akhira pe based. So whatever serves the purpose of akhira, that is good. Whatever doesn't serve the purpose of akhira is bad. Other faiths have other conceptions of the same. So in this sense, philosophical explanation has to be understood. और अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू क्यों प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट ये कि philosophy is entirely scientific endeavor. You can now understand why he does not like it. हमारी ज़िंदगी में, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, what do we understand by an explanation? किसी इवेंट की explanation. When you ask someone, now this is very important. Leave whatever you are doing and listen to this. ये जो हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ये ऐसे क्यों हुआ? Question is क्यों? What is the answer? The answer is about how it happened. कहने का मतलब, in our real life, the human inside us is asking for the why of it. The scientist outside is answering the how of it. इसको और डिटेल में समझेंगे. छोटा सा बच्चा पूछता है पापा पापा ये ऐसा क्यों है, और वो उसको जवाब देते हैं कैसे, कि ये ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे बना, ये सेब क्यों गिरा. फादर एक्सप्लेन्स हिम ये सेब कैसे गिरा, इसमें क्यों और कैसे इंटरमिंगल हो जाता है. हीगल और उनसे पहले कांट के दौर में, दे ऑब्वियसली, और आज भी ये है, साइंटिस्ट कैन नॉट प्रोसीड विद देयर साइंस इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस कॉजेशन वाली चीज़, दैट थिंग्स आर कॉज्ड बाय समथिंग. धक्का मारा बॉटल को, बॉटल गिरी. बॉटल क्यों गिरी? क्योंकि उसको धक्का मारा गया. अब ये क्यों को हम समझे कि क्यों 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 नहीं है. ये क्यों क्यों कैसे है, ठीक. बट कैन कॉजेशन एक्सप्लेन द वर्ल्ड एज ए होल? दैट्स अ क्वेश्चन. आप पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉजेशन से, बट होल को नहीं. आपकी गाड़ी चोरी हुई है, द मोमेंट यू कैच द चोर, द थेफ्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, राइट. तो इंडिविजुअल इवेंट को ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है. सो इफ ए कार इज लाइक स्टोलन, देन वी डू टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉजेशन. चोर को पकड़ा, इसका मतलब द कॉज ऑफ थेफ्ट इज बीन अंडरस्टूड नाउ. इसने ऐसे इसको चोरी किया था, बट अगेन इट हाउ ऑफ इट, कैसे हुई थी चोरी. अब इसको समझने के लिए, ये हाउ और वाई में डिफरेंस को समझने के लिए, इट्स नॉट दैट सटल. नॉट एवरीवन इज एबल टू थिंक लाइक दैट. उसको समझने के लिए लुक एट द वर्ल्ड एज अ होल. इफ यू लुक एट द वर्ल्ड एज अ होल, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ अनएंडिंग इवेंट्स. और इस वजह से अगर आप कॉजेज ऐसे ढूंढेंगे, द वे यू अंडरस्टूड इट इन दिस केस, कि बॉटल को धक्का मारा, ये गिर गई, तो गिरने का कॉज क्या है? बॉटल को धक्का मारना. गाड़ी चोरी हुई थी, चोरी का कॉज क्या है? इस चोर ने ऐसे किया था, एक स्केल लाई शीशे में से ऐसे, ओपन द लॉक एंड शॉर्ट सर्किटिंग इट, गॉट इट स्टार्टेड एंड रैन अवे विद इट. मूवीज में देखा है मैंने, अदरवाइज आई हैव नो आइडिया कैसे करते हैं. सो दिस वुड बी एन इनडेफिनिट चेन. A caused B, B caused C, C caused D, D caused D, and on and on and on and finite series. इस तरह की कोई भी तहकीक कभी ख़त्म नहीं हो सकती by definition of it.
It will end up in an infinite regress. The search is bound to end in a fiasco. तो क्या हम डॉगमेटिकली एक फर्स्ट कॉज मान लें कि एक फर्स्ट कॉज है अनकॉज्ड कॉज? ये एक आर्बिट्री डिसीजन है, मैं ये बहुत बार कहा हूँ, लेकिन अब जब इतनी बड़ी हस्ती बोलते हैं तो आई फील वो तकवीत सी मिल जाती है, emboldened to say it now. ये एक आर्बिट्री पोजीशन है कि देयर इज एन अनमूव्ड फर्स्ट कॉज. if it's uncaused cause तो हमारी causality तो फेल होगी. That means there can be causes without a cause. Why assume these things also have a cause? ये arbitrary decision है and it is not enough a solution. If there is no event without a cause, then there is not even the first cause about which logically we cannot ask. What is the cause of this one cause? The first cause. Cannot ask it. हमारा causality का सवाल ही फेल हो गया. और अगर हमने कॉजेलिटी को वैसे समझा और फर्स्ट कॉज पोजिट नहीं किया, देन वी कैन बी श्योर वी कैन नॉट डू ए कंप्लीट साइंस. कर ही नहीं सकते. एनालिटिकल फिलोसफर्स इसको कैसे डील करते हो? कहते हैं होल वर्ल्ड के बारे में सवाल पूछना बंद कर लो, पूछ ही नहीं सकते, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड. रसल से पहले, आयर से पहले कांट ने भी ये पॉइंट आउट कर दिया था कि ये जो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन है ये वैलिड है फिनोमेना के लिए. कॉजेशन दुनिया को एज ए होल एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती है. नॉमिना में जो ही ये एंट्री मारोगे उससे कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे स्पेस टाइम के कंसेप्ट अप्लाई करके. मॉडर्न फ़लसफ़ा जो अभी का है, if you are attempting to explain the world as a whole in terms of causation, it's something we call category mistake now. So we shall be like wrongly using a category of causation for phenomena where it is not applicable at all. But Hegel goes a step further. हीगल क्या कह रहे हैं? हीगल कह रहे हैं कॉजेशन अनसाउंड है एज अ प्रिंसिपल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. जो हम एक्चुअली पूछ रहे होते हैं वो कॉजेशन होती ही नहीं है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं पिछले 1 साल से आपको ये हाउ एंड वाई ऑफ इट में डिफरेंस बता रहा हूँ वो आज क्लियर हो जाएगा आपको. तो हीगल एक स्टेप आगे बढ़ते क्या कहते हैं? कॉजेशन है ही नहीं सही सही तरीका जवाब देने का इस सवाल का कि क्यों हुआ है. आप इसका हाउ बता रहे हो तो ये है ही नहीं. कॉजेशन टेल्स अस द हाउ ऑफ इट. इट्स नॉट द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन. आप कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप पानी को ठंडा करते जाएंगे ये सॉलिड हो जाएगा, आइस बन जाएगा. अगर आप लोहे को गर्म करोगे तो एक्सपैंड होगा, आप ये कहते हैं. और ये जब आप कह रहे होते हैं यू थिंक यू आर एक्सप्लेनिंग द वाई ऑफ इट कि क्यों एक्सपैंड होगा, कहोगे गर्मी की वजह से. सो ये वर्क क्यों करता है? क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ लाइफ जो है वो इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस बॉटल क्यों गिरी, किसी ने धक्का मारा था इसलिए गिरी. सो दे कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट फॉर philosophical purposes we should not simply state that ठंडा करने से पानी आइस बन जाएगा. बट फिलोसॉफिकली वी शुड बी एबल टू आंसर कि वाई ठंडा करने से पानी क्यों कंट्रैक्ट होगा. वाई कोल्ड कंट्रैक्ट्स एट ऑल. यू कैन आंसर इट क्योंकि इससे स्पेस फॉर एग्जांपल यू माइट टेल मी कि अगर आप प्रेशर किसी गैस पे डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे लिक्विफाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में से स्पेस कम हो जाएगी, वाइड कम हो जाएगा. स्पेस ये कहाँ है? स्पेस ये कहाँ से निकली बाहर? सवाल है कि क्यों होगा ऐसे कि स्पेस कम होने पे चीज़ लिक्विड हो जाएगी. ये सवाल है. आप आंसर कर रहे हैं कैसे? और लिक्विड के कैरेक्टर क्या है? लिक्विड के कैरेक्टर है कि एटम्स आर क्लोजर देन गैस. सवाल वो था ही नहीं. सवाल ये था कि एटम्स के क्लोज होने से चीज़ लिक्विड क्यों होती है. व्हाई इज इट नॉट सॉलिड? व्हाई इज इट नॉट गैसियस?
We should be able to answer the question why cold contracts at all. And science is not concerned with this why. It is concerned with how. Science therefore tells you so and so is the case. It cannot tell you and it does not tell you that it must be the case. Any law in science, any factual law, ये बस ब्रूट फैक्ट्स का एक एक्सप्लेनेशन है, उसमें विजिबल एक पैटर्न जो हमको दिख गया, दैट्स ऑल इफ साइंटिफिक लॉ इज। और एवरीडे लाइफ में हम इसके सामने झुक जाते हैं इन ए नेचुरल पार्टी। लेकिन फ़लसफ़े में जो इंसान का असली दिल है जो उसका, वो इसके सामने सजदा नहीं कर सकता। बिकॉज़ इन philosophy we do not ask what is the fact, we ask why is the fact, why isn't there any other fact, why this fact in this way and not any other way. आप जैसे पूछ सकते हैं सवाल, छोटे बच्चे का बचपने वाला सवाल, पापा पापा घास ग्रीन क्यों है, मम्मा मुझे ये बता दो कि सब्जी ग्रीन क्यों है। और ये कोई मसला नहीं है, हम बोलोगे कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है तो इस वजह से हमको ग्रीन दिखता है, लाइट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वाइट लाइट में। और शायद आपको ये एक चाइल्डिश क्यूरियोसिटी लगे, कभी कभार ऐसे भी लगे कि इट्स लाइक अनआस्केबल सच अ क्वेश्चन, लेकिन जो कॉमन सेंस में इतना क्लियरली आंसर हो गया, ये ज़रूरी नहीं कि फ़लसफ़े में भी इतना क्लियरली आंसर हो जाए। कॉमन सेंस एक्सेप्ट्स मेनी थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। In fact, we know that common sense views are many a times riddled with contradictions, and Bradley points it out. ब्रैडली के हिसाब से साइंस पे वी ब्रिंग टुगेदर वो कोल्ड और कंट्रैक्शन को हमने एक कर दिया। ब्रैडली के हिसाब से ये एक मेयर कंजक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है कोल्डनेस और कंट्रैक्शन में, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और ब्रैडली के लिए इट्स इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टू से इट। तो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन जो होगी ये घास ग्रीन क्यों है, इट्स आस्किंग व्हाई ऑफ इट। It has to be a self-explanatory explanation. It has to be self-consistent. It has to be a rational explanation of the same thing. And what does that mean? That means the why has to answer the reason the thing is, not its causes in the causal sense. You have to find out why the reason thing is at all. Reason of things. We cannot ask of reason what is its own reason. And that's where reason is the correct explanation. There is no point of asking reason of reason, since reason is the reason of things and explains the moment and direction of all events. जैसे फॉर्म एरिस्टोटल का था, ये फाइनल है, ये होली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई चीज कैसी क्यों है। कॉजल रिलेशन जो टेम्पोरल इवेंट्स को इंडिविजुअली लिंक करता है एक दूसरे के साथ, उसके बरक्स ये एक्सप्लेनेशन जो है रीजन, इट्स लोकस इज द वर्ल्ड एज अ होल। स्पिनोजा इफ यू रिमेंबर, जब उन्होंने कहा था सब स्पीशी एटर्निटेटिस, we have to view relations as a whole in the universal perspective. रीजन atemporal है, जो एक्सप्लेनेशन आपको देनी है किसी चीज़ की कि why is it, the explanation has to be atemporal, it has to be holistic. And in this way, looking at what we have said right now in the light of what we understood yesterday, only in whole a part can have meaning and function. Rational explanation necessarily follows from the whole. ये holistic necessity, इसको इंटरप्रेट नहीं करना है एज अ लॉजिकल नेसेसिटी, नो, इट इज़ नॉट दैट। हम इस सब को समराइज कर सकते हैं जो हमने कल पढ़ा और आज पढ़ा इन फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेनेशंस दो तरीके की हो सकती है किसी भी चीज़ की, एक कॉजल और एक ये
रैशनल। इन वर्ड्स को आप मतलब जो इंग्लिश में इनकी मीनिंग है वैसे ना समझे, जो इस वक्त हमने समझा वैसे कॉमन टर्म्स। कॉजल एक्सप्लेनेशन दो तरीके की हो सकती है, एक इंडिविजुअल चीज़ इवेंट्स को एक्सप्लेन करने की। तब ये क्या हो जाता है, ये सिंपल एक पैटर्न जो हम इन्फ्यूज़ करते हैं ब्रूट फैक्ट्स पे, जो ब्रैडली के हिसाब से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। या तो फिर हमें कॉजल रिलेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द होल वर्ल्ड एज ए होल, तब क्या होगा, तीन में से एक केस होगा। या तो इट लीड्स टू रिग्रेसम एड इन्फिनिटम, कि इन्फिनिट रिग्रेशन हो जाएगा, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कॉज का कॉज का कॉज का कॉज, आप ये पीछे चलते जाएंगे। या तो आप आर्बिट्रीली फिर फर्स्ट कॉज बोलेंगे, या तो फिर यू वुड कॉल इट ए कैटेगरी मिस्टेक। सो इससे क्या पता चला हमको, कॉजल रिलेशन अनएक्सेप्टेबल है एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स। तो वैलिड एक्सप्लेनेशन क्या है, तब दूसरी, रैशनल, फाइंडिंग द रीजन ऑफ थिंग्स, व्हाई दे आर द वे दे आर एट ऑल। और ये जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है चीज़ों की इन टर्म्स ऑफ रीज़न, ये हीगल के हिसाब से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली ग्रेजुअली। धीरे धीरे हम ये राज खोलते जाएंगे इसके, और धीरे धीरे हम इसको समझते जाएंगे, बाय शोइंग दैट आइडियाज आर द रीजन ऑफ थिंग्स एंड देयर इनर मोस्ट एसेंस। आइडियाज, why is grass green? It is because of the idea of grass. हमने इससे पहले आइडिया के बारे में बहुत बात की है बर्कले में, इस हीगल वाले सीरीज में भी। इसमें हमने आइडिया के बारे में बहुत बात किया है, द आइडिया फ्रॉम ए परसेप्ट, द आइडिया फ्रॉम ए कंसेप्ट। हमने प्लेटो का आइडिया भी रिविजिट किया एज द एसेंस, एज अ टाइमलेस और इटर्नल थिंग। लेकिन हमने हीगल का भी देखा ना, हीगल और ब्रैडली का भी हमने देखा कि आइडिया एज अ कंक्रीट यूनिवर्सल। तो अब हम इसको थोड़ा सा और फिर से रिवाइज करते हैं, आइडिया क्या है। पहले हम देखते हैं वो बर्कले का आइडिया क्या था। हमने बर्कले पे डिटेल डिस्कशन किया है उनके आइडिया का, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिर्फ समराइज करूँगा। कोई भी चीज़ इज एसे एस्ट परसिपी, ए थिंग इज व्हाट हाउ इट इज परसीव्ड, ए थिंग इज इन इट्स परसिपी। बर्कले ने, अगर आपको याद हो, पूछा था शो मी एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट्स एंड इज नॉट एन आइडिया। आप दिखा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो ही आपने उस बारे में बात की तो हो गया वो आइडिया में ट्रांसफ़र। तो बर्कले ने ये सवाल आपसे पूछे कि दिखा दो मुझे कोई चीज़ जो आइडियल नहीं है, जो आइडियाज़ में नहीं है। क्या बोला था उन्होंने, एक टेबल क्या है, कॉन्जरीज ऑफ कलर, शेप, वेट एंड सो ऑन, दीज आर ऑल परसिपी, दीज आर ऑल आइडियाज़। तो जो ये आइडिया है, दीज परसेप्शंस, दे डिपेंड ऑन ए ह्यूमन परसिपिएंट। फॉर एग्जांपल मीठी चाय, इसकी जो ये मिठास है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द टेकर ऑफ द टी। आग पे जल गया हाथ, तो ये जलन जो है ये आग में नहीं है, इंसान के अंदर है, इट्स इन द एक्सपीरियंसर ऑफ इट। इससे हमको पता चलता है, we can generalize that all perceptions are equally relative and they are dependent on the percipient. Even extension, solidity, motion, all of these things are dependent on the percipient. ये हमने सारा बर्कले में देखा था, जिनको हम प्राइमरी क्वालिटीज कहते हैं वो भी डिपेंडेंट है, they are all subject to, they are all mind dependent. A thing is just a congregation of perceived qualities and perception, and this all is mind dependent. So Berkeley का conclusion in Berkeley's own words, all the choir of heaven and, ये हमने वहाँ पे भी देखा था, the choir of heaven and furniture of earth. In a word, all those bodies which compose the mighty frame of the world have not any subsistence without a mind. That their being is to be perceived. To be is to be perceived.
Socrates की तरह ही Berkeley himself had regarded perception to be momentary, relative and dependent on the percipient. यही चाय जो किसी को मीठी लगेगी वो दूसरे को मीठी नहीं लगेगी, या अगर आपने उससे पहले चॉकलेट खाया हो तो अब आपको भी ये मीठी नहीं लगेगी. Naturally, if a thing be a series of perceptions, then the same object will not remain the same for all persons and percipients. तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज नहीं एक्सप्लेन हो जाएगी एस से एस परसिपी से. हमने कांट को देखा, उन्होंने इसको कैसे टैकल किया. उन्होंने इसको टैकल किया बाय गोइंग द अदर वे राउंड, कॉपरनिकन रेवोल्यूशन करके, कि नॉलेज तो ऑब्जेक्टिव है. तो इसका मतलब बर्कले का एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है. बर्कले का कंक्लूजन सही है, सही बात कह रहे हैं बर्कले, लेकिन नॉलेज भी ऑब्जेक्टिव है कांट ने कहा. तो इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो इनकम्प्लीट है. देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन इट. सो for Berkeley himself, he realized the objectivity of knowledge cannot be established like this. He realized this and hastened to add that the essay of a thing is ultimately divine perception. उन्होंने वहाँ पे objectivity कैसे maintain करी फिर चीज़ों की, कि everything is being perceived by one ultimate being, which is God, divine perception. जब to be is to be perceived, तो अगर आंखें बंद की तो चीज़ खत्म हो गई क्या. तो बर्कले said उस वक्त उसको खुदा देख रहा होता है. It is being perceived by God. But whatever may be said of perception in the mind of God, the divine perception is a matter of pure speculation. It cannot be verified. It is beyond rational verification. It is not a right justification. तो इस वजह से जो लेटर आइडियलिस्ट्स हैं वो they do not regard essay to be of a thing is its perceived, to be is to be perceived. वो ये नहीं मानते. They replace it by intelligence. So to be is intelligence. So, according to the idealist, a thing is a series, a congeries, or an aggregate of universals. For example, a piece of stone is hard, colored, cold, heavy, and so on. ये जो हार्डनेस है, कलर्डनेस है, कोल्डनेस है, हैवीनेस है, ये सारी यूनिवर्सल्स है. और यूनिवर्सल इज सेम फॉर यू एंड मी एंड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. सो इफ ए थिंग इज टू बी नोन, देन वी हैव टू नो द यूनिवर्सल्स of which it is composed. And by treating a thing as an aggregate of universals, we can explain objectivity of knowledge concerning any object whatsoever. वे यूनिवर्सल कहाँ से लाएंगे? It's obtained by detecting a common essence, by ignoring accidental accompaniments of particular things. For instance, by ignoring variable colors, sizes, eyes, nose, and so on, and by concentrating on the common feature, we obtain the abstract essence of cowness and horseness. So, a universal is always in thought and is thought. In the same way, we can say that universal is an abstraction by thought for thought. So, a universal is essentially a thought. और ये जो यूनिवर्सल है, इट्स नॉट टेम्पोरली रिलेटेड विद द थिंग्स. इट इज़ नॉट लाइक टेम्पोरली प्रायर टू थिंग्स. Things and universals constituting them, they are found together. But whenever we think first of universals and afterwards of objects which are constituted by universals. I think जो मुजना ने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था वो अब उनको क्लैरिफाई हो गया होगा. So universals are only logically prior to things, but in ontologically they are not prior to them. They are together. चीज़ें इंडिविजुअली परसेप्टेबल है, सेंसिबल है, लेकिन यूनिवर्सल की सिर्फ लॉजिकल एग्जिस्टेंस है, विच कैन ओनली बी ग्रास्प्ड बाय इंटेलेक्ट अलोन. और ये जो लॉजिकल बीइंग है, इट इज अ थॉट. सो यूनिवर्सल इज थॉट. इन फाइनल एनालिसिस वी विल कॉल इट अ थॉट. So a thing which is constituted by universals is ultimately constituted by thought. Thus the doctrine esse est percipi, it finally reaches its logical conclusion in the cardinal tenet of idealism, esse est intellecti. A thing is a thought.
अकॉर्डिंग टू विच चीज़ें क्या हैं, दे आर नथिंग बट थॉट, और थिंग एंड थॉट आर आइडेंटिकल। यहाँ पे एक सवाल उठता है, थिंग्स एंड थॉट्स दे आर सो डिफरेंट इन काइंड कि बहुत मुश्किल है हमारा इसके साथ जस्टिस कर पाना, इसको एग्री कर पाना, इस बात को, ये जो कही गई अभी अभी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीस विद इट, वी कैन नेवर इमेजिन देम टू बी आइडेंटिकल। ये सवाल बर्कली ने उठाया था, and he answered the question by regarding a thing as an aggregate of sensible qualities. लेकिन आइडियलिस्ट्स क्या कर रहे हैं, दे रिगार्ड a thing as aggregate of universals. Universals are non-sensible. अब क्या करें? How can sensible thing be explained in terms of thought? प्लेटो को भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो अगर आपको याद हो। आइडिया तो उन्होंने पॉजिट कर दिया था, लेकिन आइडिया और थिंग के बीच में रिलेशन क्या है ये वो कर ही नहीं पाए फिर फाइनली। वो थर्ड मैन, अगर आपको याद हो फैलेसी, वो हो जाता है उसमें। कांट क्या कैसे सॉल्व करते हैं इस मसले को? ही वुड नॉट सब्सक्राइब टू आइडियलिज्म, ही वुड से कि कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट आर एम्प्टी, बेकार बात ही कर रहे हो, हवा में महल बना रहे हो। एट दिस जंक्चर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और जब वो मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम ईदू का फ़लसफ़ा समझने के लिए तैयार हो गए होंगे। हमने सारे फिलोसफर पढ़े, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ, मतलब कांट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, हीगल से पहले हमको ये सब पढ़ने पड़े। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल इज, इसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। इसने सारे फिलोसफर्स पढ़ लिए, जो जो अच्छी बात लगी सबको एक जगह इकट्ठा करके रिकंसाइल कर दिया और अपना फ़लसफ़ा बना दिया। ही इज सिंपली टेलिंग अस द सेम ओल्ड थिंग्स, विच इज़ ट्रू, बट दैट्स वेयर हिज जीनियस इज, कि हर एक इंसान को रिकंसाइल करना जो पास्ट में थे। आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। इट वाज अ शॉर्ट सेशन, जो कल बात अधूरी रह गई थी उसको पूरा करना था, और वो हो गई।